हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से पहले आप फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं। So let us see problem number 13. So in this problem, we are given data of a capital project C. So we are given cost of project, useful life, profitability index, and internal rate of return. And salvage value is nil, so we have to calculate what is the annual cash inflow, cost of capital, net present value, and discounted payback period of the project. So let us see what the data is given. Cost of project is given, which is also called as initial investment in zero time period. So this is given to be 228,400. So then we are given useful life of the project is 4 years, and the profitability index is given, which is also called as PI. This is given to be 1.0417, and internal rate of return is also given, IRR, and the salvage value is given, which is also called the scrap of asset at the end of its life. This is given to be nil. So we have to calculate what is annual cash inflow and cost of capital, net present value and discounted payback. तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा। देखो क्वेश्चन आपको IRR मेंशन की है, तो IRR की डेफिनेशन होती है, so we know that at IRR, present value of cash inflow is equal to initial investment. तो IRR आपको दिया है 15%। कुछ मीन जैसे क्वेश्चन साइलेंट है, कैश इनफ्लो मेंशन नहीं किया है, तो नॉर्मल एजम्पशन यही मानी जाएगी कि आपकी जो कैश इनफ्लो है दैट इज कॉन्स्टेंट। तो इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। बेसिकली आप एन्युटी फैक्टर लेते हैं 4 ईयर्स का एट IRR, IRR इज 15% फॉर 4 ईयर्स। Now this is your present value cash inflow, it should be equal to investment. Investment आपको mention की है, this is 228,400. So this annuity factor we can calculate. So cash inflow into, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए annuity factor 15% के ऊपर 4 years का, तो 1 divided by 1.15 for 4 years. So this is coming 2.855 is equal to 228,400. तो इसको सोल्व करके आपको कैश इनफ्लो मिल जाएगा पर एनम। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, सो 228,400 डिवाइडेड बाय 2.855, दिस इज कमिंग 80,000 एग्जैक्ट फिगर। So once we know cash inflow, so now we can calculate, so what is our profitability index. So let us apply this formula. So profitability index formula is this one, present value of cash inflow, so at discount rate, which is also called cost of capital, denoted by KO, and divided by investment. It means you क्रॉस मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट है आपके पास 2.8400,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है तो आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट KO। इन्वेस्टमेंट की 228,400, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.0417। So this total present value cash inflow is coming. This is 228,400 into 1.0417. So this is coming to be 237,924.28. And we also know that present value cash inflow at KO, how it is calculated? Cash inflow we have 80,000. It means this is also equal to 80,000. But we don't know what is your cost of capital. So present value will be present value factor for annuity at KO. KO is not given for 4 years. So it means this is also present value of cash inflow at KO, which is equal to this one, which we have calculated, which is 237. So 924.28. So if you cross multiply, so you will get present value factor for annuity at KO for 4 years, which is this divided by this one, 237 924.28 divided by 80,000. So this is coming to be 2.974. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी आपने कैलकुलेट किया था 15% के ऊपर हमारा पीवी फैक्टर है 2.855 फॉर 4 ईयर्स से। तो अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। सो इफ KO is equal to 15%. What is this factor? Then present value factor for annuity is equal to 2.855. But we require slightly higher value. तो उसके लिए आप KO को रिड्यूस कीजिए। तो let KO is equal to 14%. Then you see what is the present value factor for annuity. तो जिसे कहा कि हिट एंड ट्रायल मेथड को कैलकुलेट करते हैं 14% के बेस पर 4 ईयर्स का पीवी फैक्टर 1 divided by 1.14. This is coming 2.9137. So this is still higher. So let us try KO equal to 13%. So what will be present value factor for annuity at 13% for 4 years? So this is coming to be 2.9745. Now this is exactly equal to this. It means we can say that cost of capital is 13%. So we can say that thus our cost of capital is equal to 13%. So now you get cash inflow and you get cost of capital also. We can determine what is NPV. So now we can calculate NPV. So NPV is equal to present value of cash inflow minus initial investment. Cash inflow we already have 80,000 and present value calculated at KO. So KO is 13%. So you multiply by present value factor for annuity at 13% for 4 years. Investment is 228,400. So this is 80,000 into present value factor we already have 2.9745 minus 228,400. So this will be our NPV. So 80,000 into 2.9745, this totally coming 237,960 minus 228,400. So NPV is 9560. So next they are asking we have to calculate our discounted payback period. तो उसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेट अस प्रिपेयर ए टेबल फॉर डिस्काउंटेड पेबैक। सो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन 4 years 1 2 3 and 4. So cash inflow we already have in rupees. This is 80,000 every year. So then you apply PV factor
at KO, which is 13% for each year. So this बनेगी 0.885, 0.783, 0.693 and 0.613. So this you will get a present value of cash inflow for every year. 80,000 into 0.885. This is 70,800. Then you also calculate cumulative present value of cash inflow. तो cumulative फर्स्ट ईयर में सेम ही रहेगी आपकी 70,800. Then for second year 80,000 into 0.783. This is 62,640. So cumulative will get 133,440. Then for third year 80,000 into 0.693. This is coming 55,440 and cumulative is 188,880. Then for third year 80,000 into 0.613. 49,040 and cumulative is 237,920. Now you can calculate discounted payback. So for payback we have to recover our cost of investment, which is 228,400, and this will be recovered in between this third year and fourth year. तो 3 सालों में देखिए आपको रिकवरी है 188,880 की. तो आपका मिनिमम पीरियड है 3 प्लस. तो आप देखिए आपको रिकवरी करनी है अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 228,400. उसमें से माइनस कीजिए 3 सालों में जितना अमाउंट आपका रिकवर हो गया 188,880. अब ये जो बैलेंस अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का ये रिकवर होगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू. अब नेक्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है 49,040. तो एक तरीके से हम यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं. टू रिकवर दिस 49,040 वी रिक्वायर हाउ मच टाइम 1 ईयर. एंड टू रिकवर दिस जो गैप है आपका, टू रिकवर दिस गैप हाउ मच टाइम विल बी टेकन. So let us see, this is 228,400 minus 188,880. So this difference is coming. So 3 plus 39,520 upon 49,040. So this is coming 3.8059 years. ये आपके कंप्लीट ईयर्स आ रहे हैं. तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे 3 ईयर्स कंप्लीट हैं 0.8059 ये ईयर्स हैं, इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप. तो लेट अस सी हाउ इट इज पॉसिबल. इट मीन्स डिस्काउंटेड पे बैक इज इक्वल टू 3 ईयर्स हैं आपके 3 ईयर्स. आप इसके बना लेते हैं मंथ्स 0.8059. इसको कर लीजिए इंटू 12. तो ये आपके मंथ्स बन जाएंगे. इससे आपको मिलेंगे देखो 3 ईयर्स कंप्लीट हैं एंड जिसे कमिंग 9.67 मंथ्स. 9.67 मंथ्स. ये जो 0.67 है इसको भी हम डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपका गेट आंसर आ जाएगा 3 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 0.67 को देखो कितने डेज हैं आपके. ये 0.67 मंथ्स हैं तो एक मंथ में हो गए 30 डेज. इंटू कर लीजिए 30. तो 0.67 इंटू 30 जिसे 20.1 इट मीन्स 20 डेज. ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया. फिर अगर भाई आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 3.8059 ईयर्स. और ये आपका और भी एग्जैक्ट आंसर है मंथ्स में और डेज में. तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 14. फिर प्रॉब्लम 14 डाटा गिवन इज
So effective hospital is considering to purchase a CT scan machine. Presently the hospital is outsourcing the CT scan machine and is earning commission of 15,000 per month after tax. तो प्रेजेंटली ये एक हॉस्पिटल है, तो ये इसने एक बाहर से हायर की है मशीन और उससे आपको कमीशन अर्न हो रही है 15,000 पर मंथ आफ्टर टैक्स. नाउ दिस हॉस्पिटल इज कंसीडरिंग टू परचेज द सिटी स्कैन मशीन. द फ्लोइंग डिटेल्स आर गिवन. तो उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी जिसे रुपये 10 लाख. तो दिस इज गिवन कॉस्ट ऑफ मशीन. ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी एंड दिस इज रुपीज 10 लाख. और एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स आपकी हैं पर एनम एक्सक्लूडिंग डेप्रेशन 225. एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर एनम 790 विच इज सेल. सैलरी वैल्यू होगा मशीन आपके 5 ईयर. एक में लाइफ आपको दी है मशीन की जिसे 5 ईयर्स और उसकी सैलरी वैल्यू दी है आफ्टर 5 ईयर. सो दिस विल बी अवर 2 lakhs. उसके बेस पर आप इसकी डेप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं पर एनम. वट विल बी डेप्रेशन पर एनम. किसी की कॉस्ट माइनस स्क्रैप विच इज 2 lakhs अपॉन लाइफ विच इज 5 ईयर. That is 160. Now we have to determine NPV. For this purpose we have to prepare income statement. So let us see income statement. तो आपको क्या क्या मेंशन किया है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव. दिस इज एवरी ईयर की सेम. So we can show income statement for 1 to 5 year. Amount in rupees. So first of all we are given what will be expected revenue per annum. Revenue means sales. So that one will be over 7,90,000. So less operating expenses are given. These are also per annum. This will be excluding depreciation. These are 225. It means balance is profit before depreciation PBT. So this is 790 minus 225 565. From this we subtract depreciation which is 160. Balance is PBT profit before tax. इसमें से आप टैक्स माइनस कर दीजिए. So tax rate is given to be 30% at the rate of 30%. So 565 minus 160. This is 405. So tax is 30%. 121,500. So after tax we get to 283,500. This is profit after tax. इसमें आप एड बैक कर दीजिए डेप्रिसिएशन. दिस विल बी कैश इनफ्लो. डेप्रिसिएशन इज 160. सो कैश इनफ्लो इज 160. 443. फिर एक आपको मेंशन किया है प्रेजेंटली जब हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं ऑफ द मशीन वी आर गेटिंग इनकम ऑफ 15,000 पर मंथ आफ्टर टैक्स. तो अब इस इनकम का हमारा लॉस हो जाएगा. इसको कर लीजिए माइनस. तो किसी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस. अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ प्राइसिंग इनकम विच इज 15,000 पर मंथ है. इनको कर लीजिए 12 विच इज 180. and this is already after tax. So it means now total cash inflow from this project will be this is 263,500. अब आप अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस सी टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. तो आपका कैश इनफ्लो सेम ही है एवरी ईयर 1 to 5 years. सो यू कैन शो द टेबल ईयर 1 to 5 एंड लास्ट ईयर इज 5th which is कैश इनफ्लो. So annual cash inflow is 263,500. और एक लास्ट में आपको मिलेगी स्क्रैप ऑफ दी एसेट विच इज 2 lakhs.
which is called terminal cash inflow, and apply PV factor. डिस्काउंट रेट आपको मेंशन किया है, दिस इज 12% फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर आप लीजिए एनुटी फैक्टर फॉर 5 ईयर एंड सिंगल फैक्टर 0.567, टोटल इज 3.605। तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, किसी कमिंग 263,500 इंटू 3.605 प्लस 2 lakhs इंटू 0.567, so this total is coming to 1063,318 राउंडेड फिगर। उसमें से हम माइनस कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट। सो फ्रॉम दिस लेट अस सब्सट्रैक्ट अवर इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 10 लाख रुपीज and balance will get to NPV, net present value. This is 63,318. And second, they are also asking calculate profitability index. So what is profitability index? Formula is total present value of cash inflow divided by investment. Total present value is 1063,318 upon 10 lakhs. So profitability index is 1.0633. So since NPV is positive, means greater than 0, profitability index is more than 1, so we should accept the new machine. So it means decision is we should buy new machine. So next let us say problem number 15. So in problem 15 we are given PQ is considering the purchase of a new automatic machine which will carry out some operations which are at present performed by manual labor. तो आपको एक मशीन परचेज करनी है ऑटोमेटिक, प्रेजेंटली वर्क इज डन बाय मैनुअल लेबर एंड 2 अल्टरनेटिव मॉडल्स ए एंड बी आर अवेलेबल इन द मार्केट। और इस मशीन के 2 मॉडल्स हैं, मॉडल ए एंड बी। तो उसका डाटा आपको दिया है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ मशीन है मॉडल ए 2 लाख, मॉडल बी है 250, लाइफ है 5 ईयर्स। फिर आपको दिए हैं कि सेविंग्स कितनी होंगी आपकी वेजेज में, स्क्रैप में, और कितने आपके एक्सपेंसिज होंगे मटेरियल, लेबर एंड रिपेयर्स फॉर 2 मॉडल्स। So depreciation will be charged on a straight line method, tax rate is 30% and expected rate of return is 12%. So we have to calculate and evaluate the alternatives by calculating payback period, accounting rate of return and profitability index. तो आपने लिखना है दोनों में से कौन सा मॉडल बेटर है बाय अप्लाइंग पेबैक पीरियड, ARR एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसलिए पहले देखते हैं तो दोनों मॉडल्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है। So we have model A and model B. तो दोनों मॉडल्स की लाइफ आपको 5 साल की दी है, लाइफ इज गिवन एंड 5 ईयर्स, बट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी I0 ये आपकी डिफरेंट है। मॉडल ए इज रुपीज 2 lakhs एंड मॉडल बी इज 250। इससे आपकी जो है आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी डिवाइडेड बाई 5, 40,000 एंड 50,000। अब हम प्रिपेयर करते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट ऑफ बोथ मॉडल्स। उसके लिए देखिए आपकी इनकम्स में क्या क्या आएंगी। सेविंग्स कितनी है आपकी, सेविंग्स है आपकी वेजेज में और स्क्रैप में। टोटल देखो बन रही है 70,000 प्लस 6,000, 76,000 सेविंग्स। और जो मॉडल बी की सेविंग्स है वेजेज में और स्क्रैप में 90 प्लस 10, 1 लाख। एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट। इसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसिज। एक्सपेंसिज आपको दिए हैं वी रिक्वायर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड रिपेयर्स। टोटल बन रहे हैं इसमें देखिए 4,500 प्लस 4,000 प्लस 3,000, 11,500। और मॉडल बी में टोटल है 9,000 प्लस 5,000 प्लस 8,500, 22,500।
then you charge depreciation minus depreciation, you can see 2 lakh upon 5, 40,000 and 50,000. 250 upon 5. Balance will be our profit before tax. So this is 76 minus 11,500 minus 40,000, 24,500. उसमें से आप माइनस कीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. So into 30%, 7350. Balance is your profit after tax 17,150 और डेप्रिसिएशन आप एड बैक कर दीजिए. दिस इज 40,000 and this will be cash inflow per annum. This is 57,150. जैसे इनकम स्टेटमेंट आपकी बन रही है 1 to 5 ईयर. Every year cash inflow and profit it is same. Similarly for second model, 1 lakh minus 50,000 minus 22,500, 27,500 minus tax 30%, 8,250. So we get a profit after tax 19,250. Depreciation is added back 50,000. Cash inflow is 69,250. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट एवर देयर आस्किंग. फर्स्ट देयर आस्किंग बट पे बैक पीरियड. अब देखिए कैश इनफ्लो आपका हर साल सेम है, तो फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा पे बैक पीरियड, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम. तो टोटल इन्वेस्टमेंट की 2 लैक्स, इसको आप डिवाइड कीजिए कैश इनफ्लो 57,150, जिससे कि पे बैक पीरियड. तो देखिए कमिंग 3.25 years. And for second year it will be 250 divided by cash inflow 69,250. जैसे 3.61 ईयर, ये आपका ईयर्स में आ रहा है पे बैक पीरियड. देन वी हैव टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR. इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो एवरेज मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 17,150, ये हर साल सेम ही रहेगा, तो यही एवरेज बन जाएगी. उसकी रिटर्न आ जाएगी 17,150. इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लैक्स इंटू 100. सो वी आर गेटिंग रिटर्न है 17,150 अपॉन 2 लैक्स, 8.575%. एंड हेयर प्रॉफिट 19,250. इन्वेस्टमेंट के लिए 2,50,000 into 100. So 19,250 divided by 250, 7.7%. तो आप देखेंगे पेबैक इज लेस फॉर मॉडल ए, रिटर्न इज हायर फॉर मॉडल ए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू मेथड्स मॉडल ए इज बेटर. नेक्स्ट दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. उसके लिए आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. यू कैन सी डिस्काउंट फैक्टर आपको मेंशन किया है 12%. तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट 12% फॉर 5 ईयर. तो 12% आप लीजिए 5 साल का. दिस इज 3.605. So now you get your present value of cash inflow. This factor into cash inflow is 57,150. So this is coming to be 206,026. Then your cash inflow is 69,250 into PV factor 3.605. So total present value 249,646. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए आपका फार्मूला बन जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, उसको डिवाइड कर लीजिए इन्वेस्टमेंट से. तो उसको डिवाइड कर रखें रुपीज़ 2 लैक्स एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 250. सो दिस विल बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स.
This is 0.9986, but this is less than 1. And for first model 0.26 divided by 2 lakhs, this is 1.03013. This is greater than 1. So model A is better. तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट भी मिल रहा है, बट हेयर रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. आपकी जो ₹1 इन्वेस्टमेंट है वो भी रिकवर नहीं हो रही. तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम 16. तो प्रॉब्लम 16 में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. So MN Limited, an existing company, planning to introduce a new product with a projected life of 8 years. Project will cost 24 lakh. At the end of 8 years, no residual value will be realized. Working capital 3 lakh will be needed. तो इट मीन्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसकी कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो रुपीज़ आपके लैक्स में चल रही हैं. 24 लाख की हमारी कॉस्ट है और प्लस 3 लाख है वर्किंग कैपिटल. टोटल इट विल बी ₹27 lakh will be our total investment. The 100% capacity of the project is 20,000 units per annum, but production and sale volume on the basis of advertisement is expected under. तो आपको डिफरेंट ईयर्स की वो दी है, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3 to 5 ईयर, 6 to 8 ईयर. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 30%, 40%, 70%, 60%. तो कैपेसिटी के बेस पे नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कैलकुलेट करके दिए हैं. 6,000, 8,000, 14,000, 12,000 और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर की गिवन है. Selling price is ₹200, variable cost is 40% of sale, fixed cost is ₹2 lakh during first and second year, and it will be 3 lakh onwards. Straight line depreciation is permissible for tax purpose. Tax rate is 25%, cost of capital is 10%. Assume that loss cannot be set off and cannot be carried forward. एक नहीं, देखिए किसी ईयर में लॉस है तो उसके ऊपर आपको ना वो सेटअप होगा किसी दूसरी इनकम से, ना ही हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. इट मीन्स उसके ऊपर टैक्स सेविंग आपको नहीं मिलेगी. एडवाइज अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी. तो मेन है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है. तो लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट. तो ईयर्स आपको मेंशन किए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन 3 to 5 ईयर एंड 6 to 8 ईयर. रुपीज़ हम ले रहे हैं लैक्स में, या आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट लैक्स में है तो इसको रुपीज़ में ही शो कर रखे हैं. आपको यूनिट्स आपको मेंशन किए हैं 6, 8, 14 एंड 12. तो पहले यूनिट्स मेंशन कर रखे हैं. these are 6,000, 8,000, this is 14,000 and then it is 12,000. फिर आपको सेलिंग प्राइस दिया है देखो ₹200, वेरिएबल कॉस्ट है 40%, तो उससे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका. तो इट मीन्स डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज एट द रेट ऑफ 200 सेलिंग प्राइस है, 40% वेरिएबल कॉस्ट है. इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन है 60%, जिसे एट द रेट ऑफ 120. तो 120 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो उससे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी टोटल, जिसे 7,20,000, जिसे 960, यानी कि 120 इंटू 14,000, 1680, यानी 120 इंटू 12,000, 1440. तो इसमें से माइनस करके हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट्स, ये आपको मेंशन की हैं. सो गिवन्स विल बी अवर ₹2 lakhs ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में है 2 lakhs, then it will become 3 lakhs onwards. After second year it will be 3 lakh. और कैपेसिटी बेस पे आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, दैट इज आल्सो फिक्स्ड. एडवर्टाइजमेंट इन फर्स्ट ईयर 5 lakh, यानी कि 250, यानी कि 1 lakh एंड 50,000. तो बैलेंस यू गेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, PBD, जिसे कि 20,000. तो 960 माइनस 450,
510, 1680 minus 4, 1280, and 1440 minus 350, 1090. उसमें से आप माइनस कीजिए अब डेप्रिएशन, तो कॉस्ट ऑफ एसेट है आपकी 24, डिवाइड कीजिए लाइफ है आपकी 8, सो इट विल बी 3 lakhs विल बी डेप्रिएशन एवरी ईयर। तो हर साल सेम रहेगी और कोई स्क्रैप नहीं है आपकी। सो बैलेंस वी गेट टू पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे लॉस 280, ये नेगेटिव है, यानी कि ये प्रॉफिट 210, 980 एंड 790, माइनस कर लीजिए टैक्स। सो टैक्स रेट इज गिवन 25% एट द रेट ऑफ 25%। तो फर्स्ट ईयर में देखिए लॉस आ रहा है, बट ये लॉस आपका किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, तो उसके ऊपर कोई टैक्स सेविंग आपको नहीं मिलेगी। फ्यूचर ईयर इसमें प्रॉफिट है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 210 इंटू 25%, 52,500। सो 980 इंटू 25%, 245, 790 इंटू 25%, 197,500। सो बैलेंस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सेम ही रहेगा, लॉस 280 एंड दिस इज 592, 500 एंड दिस इज 980 minus 245, 735 and 210 minus 52,500, 157,500। अब इसमें आप डेप्रिएशन ऐड बैक कर दीजिए, दिस विल बी कैश इनफ्लो। डेप्रिएशन है आपकी 3 lakhs एवरी ईयर। सो कैश इनफ्लो इज 20,000 and this is 457,500, 1035 and 892,500 और लास्ट में आपको वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाएगी 3 lakhs से। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी अवर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। लेट अस शो स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। तो आप मेंशन कीजिए ईयर से, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3 to 5 year, 6 to 8 year and 8th year। And what is the cash inflow? रुपीज में है आपके, जैसे जो 20,000 इन फर्स्ट ईयर, then 457,500 in second year, 1035,000, 3 to 5 year, 6 to 8, 892,500 और 8th ईयर में आपको मिलेगी रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल 3 lakhs। और एसेट की कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं थी, इट मीन्स नो टर्मिनल कैश इनफ्लो फ्रॉम एसेट। नाउ यू अप्लाई पीवी फैक्टर्स। तो पीवी फैक्टर्स आपके पास हैं 10%, पोस्टल कैपिटल आपको दिया है 10%, 0.909, 0.826 और ये आपको लेने हैं 5 साल का एन्युटी फैक्टर, उसमें से ये पहले 2 सालों का माइनस कर लीजिए। तो दिस फैक्टर इज कमिंग 2.056। ऐसे आपको लेना है 8 सालों का एन्युटी फैक्टर, उसमें से 5 साल का एन्युटी फैक्टर माइनस कर लीजिए, मीन्स 6, 7, 8 ईयर का फैक्टर, जिसे 1.544 और ये है 8th ईयर का सिंगल फैक्टर, जिसे 0.4665। देन यू विल गेट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो मल्टीप्लाई कीजिए, मैं टोटली मेंशन कर रहा हूँ आपको, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए एंड दिस टोटल वी आर गेटिंग 40,42,005 माइनस कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिस पर 27 लाख
balance is our NPV. So this one is coming to be 1342,005. So since NPV is positive, ये आपकी पॉजिटिव है, अगर रखें 0, so we should accept the project. उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की कैपिटल वेस्टिंग की, फर्दर प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।